सीतापते राम 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 श्री राम नाम संकीर्तन की जय। सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अंबरीश शुभ सौनक भीष्मताल्कान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम बाहुदान स्मरामि। ஸ்ரீயப்பதியான சீதாராமனுடைய பூர்ண அனுகிரக விசேஷத்தினால் நடந்து வரக்கூடிய தொடங்க இருக்கின்ற ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணத்தினுடைய ஒரு பகுதியாகிய சுந்தரகாண்ட பாராயணமானது இப்போ பண்ண போகிறோம். இந்த சுந்தரகாண்டமானது எதிலிருந்து பண்ண போகிறோன்னா எங்கள் வெங்கடேஸ்வரா ட்ரஸ்ட்டு வெளியிட்டு இருக்கின்ற இந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணம் இதுதான் வந்து இந்த பேஸ் பண்ணி ராமநாம் பப்ளிகேஷன்ஸில் கூட ராமநாம் பப்ளிகேஷனுடைய பாடமும் இதுவும் ஒத்துப்பட்டு இருக்கும். அதில் அங்கேயும் தமிழில் மூலப்பாராயணம் வைக்கிறது அது கூட வாங்கி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். அதுவும் இதுவும் ஒன்று தான். நிறைய விஷயங்கள் ஒத்துப்பட்டு இருக்கும். எங்கேயோ சில ரொம்ப நுணுக்கமாக பேதங்கள் ஏற்படும், கொஞ்சம் வித்தியாசப்படும். ஆனால் எல்லாமே நிறைய அந்த பாடமும் அது தமிழில் வெளியிட்டிருக்கின்ற ராமனா பப்ளிகேஷன்ஸ் ராமாயணம் மூலமும் இதுவும் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு. தமிழில் வேணுன்னா அங்கே ராமனா பப்ளிகேஷன்ஸை வாங்கி நம்ம வச்சுக்கிட்டு மூலப்பாராயணம் வச்சு ஃபாலோ பண்ணலாம். இப்போ இந்த சம்ஸ்கிருதத்தில் வாங்கணுன்னா இது போல் வெங்கடேஸ்வரா ட்ரஸ்ட்டு, அதாவது ஆழ்வார்பேட்டையில் போனோம்னா அங்கே இருக்குது. வேணுன்னா நாரதகானா சம்பவத்தை தாண்டி போனோம்னா அது எந்த ரூட்டில் டிடிகே ரோடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல இந்த ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர ட்ரஸ்ட் மூலமாக வெளியிட்டப்படுகிறது இந்த ராமாயணம். இதை வந்து நீங்கள் வேணும்னா அப்படியே வாங்கி தர முடியும், வாங்கி தரேன். நீங்கள் இதை வச்சு ஃபாலோ பண்ணலாம். நீங்கள் தமிழ் இல்லை எங்களால் சம்ஸ்கிருதம் படிக்க முடியாது, தமிழில் படிக்கணும்னா ராமனா பப்ளிகேஷன் விற்கிறது, அதை வாங்கி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ராமாயணம் மூலத்தை. இப்போ நம்ம சுந்தரகாண்டம் பாராயணம் பண்ணி ஆரம்பித்து சுந்தரகாண்டம் முடிச்ச பிறகு அப்புறமா முதல்லேருந்து பாலகாண்டத்துலேருந்து ராமாயணம் பாராயணம் பண்ணலாம். எல்லாம் பகவானுடைய சங்கல்பம் நம்ம சொல்கிறோம், அதை நிறைவேற்ற வேண்டியது பகவானுடைய சங்கல்பம் தான். சரி, ஓகே. நம்ம சுந்தரகாண்டம் பாராயணத்தை ஆரம்பிச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு தியான ஸ்லோகம் சொல்லி ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவ, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ நாராயணாய, ஓம் நமோ நாராயண, ஓம் நமோ நாராயண. ராம் ராமாய நமஹ, ராம் ராமாய நமஹ, ராம் ராமாய நமஹ, ராம் ராம 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 ராம. சுந்தரகாண்ட புஸ்தகம் தமிழில் வேணும்னா இது மாதிரி கீதா ப்ரெஸ் எடிஷன் வெளியிட்டிருக்காங்க. இது மாதிரி சுந்தரகாண்ட புஸ்தகம் கூட தமிழில் வாங்கின்னு வந்து பாராயணத்து படிக்கும்போது அது நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணலாம். ரொம்ப விசேஷம். சுந்தரகாண்டத்தினால் நடக்காத விஷயம் எதுவுமே கிடையாது. சுந்தரகாண்டத்தில் பாராயணத்தினால எல்லா பலன்களும் கிடைக்கும். தர்ம அர்த்தம் காம மோட்சம் என்ற 4 வித புருஷார்த்தங்களும் கிடைக்கும்னு சொல்லும்போது சின்ன சின்ன பலன்கள் பற்றி நம்ம தனியாக சொல்லணும் அவசியம் இல்லை. சுந்தரகாண்ட பாராயணத்தினால நமக்கு எல்லா பலன்களும். ராமாயணம் முழுவதும் படிக்க முடியாதவங்க இந்த சுந்தரகாண்ட பாராயணத்தை நித்திய பாராயணமாக வச்சுருப்பாங்க. மகான்கள்லாம் பெரியவங்களாம் நிறைய பேர் வீட்டில் இருக்கும் சுந்தரகாண்ட புஸ்தகம். சுந்தரகாண்டம் புஸ்தகம் வெளியே எடுத்துன்னு போனாலே நம்மளுக்கு எல்லா எந்தவித தடங்கல்களும் ஏற்படாது. தடங்களை உடைச்செறிஞ்சிடும். எல்லா ஆபத்துக்கள்லேருந்து நம்மளுக்கு காப்பாற்றும். சுந்தரகாண்டம் புஸ்தகம் கையில் இருந்தாலே போதுமானது. சாப்பாடு குறைச்சிருக்காது. எங்கே போனாலும் நம்மளுக்கு எல்லா விதமான நன்மைகளும் ஏற்படும். சரி, பாராயணம்.
தியான ஸ்லோகம் பாராயணம் பண்ணுவோம். ஓம் ஸ்ரீ ஹரி ஸ்ரீ ஓம் ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பரபிரம்மணே ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பரபிரம்மணே நமः. சரிதம் ரகுநாதஸ்ய சதகோடி பிரவிஸ்தரம் ஏகைகம் அக்ஷரம் பிரோக்த மகாபாதகநாசனம். இந்த ராமாயணத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு அக்ஷரமும் மகாபாதகங்களை போக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. बाह्ये सात्यः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यः स्युः तं नमामि गजाननं. दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिम् अयमक्षमालां तदान हस्ते नैकेन बद्धं शिरमपि सुखं पुस्तकं चापरेण भासागुन्तेन्दो शङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमान असमान सामे वाक्देव देयं निवसति वदने सर्वदा सुप्रसन्ना. पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखम् अन्ते वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं कोणयादि परां गतिं. यः पिबन् रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं मन्ते प्राचेतसमकल्मषं. पुष्पधिकृत वाराशिं मशकीकृत राक्षसं रामायण महामालरत्नं वन्दे अनिलात्मजम्. अंशनानन्तनं जानकी वीरं जानकी शोकनाशनं कबीशम् अक्षहन्तारं वन्ते लङ्का भयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धु सलिलं सलिलं यत्सोकपक्ष्मीं जनकात्मजायः आदाय देनेव तथाखलङ्गा. नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमधिपाडलाननं काञ्चनात्रिकमनीय विग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि भवमाननन्तनं. यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं. मनोजवं मारुते तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमदां वरिष्ठं पादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. श्रीरामदूतं शिरसा नमामि. बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणं भवेत्. यः कर्णाञ्जलि संबडित अहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकिर्वदनारविन्दकलितं रामायणाख्यं मधु. जन्म व्याधि जरा विपत्ति मरणैः स अत्यन्त उपद्रवं संसारं स विहाय कच्छति भुवन् विष्णोः पदं शाश्वतं. तदुपगत समास सन्धि योगं सममधुरो वनदात्तवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं. दशसरसश्च वदं निशामयत्वं वाल्मीकिगिरिसम्बोधा रामसागरकामिनी. पुनादभुवनं पुण्या रामायण महानदी. श्लोकसार समाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं गाण्डक्राह महामीर्णं वन्ते रामायणार्णवं. वेदवेत्य परे पुंसि जादे दशरथात्मजे वेदः प्राचेदसा दासीत् साक्षात् रामायणात्मना. वैदेही सहितं सुरत्र मदले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्. अग्रे वाच यदि प्रपञ्चनसुदे तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं. वामे भूमिसुधा पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रा सुधः शत्रुघ्नभरतश्च पार्श्वतलयोर्वायवादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवरार्थ तारासुधौ जाम्बवान् मध्ये नीलसरोज पौनरुषं रामं भजे श्यामलं. नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै. नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदनेभ्यः. नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै. नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदनेभ्यः. सर्वारिष्टनिवारकं शुभकरं पिङ्गाक्षमक्षापहं सीता अन्वेषण तत्परं कविवरं कोडिन्तु सूर्यप्रभं. लङ्काद्वीप भयङ्करं सकलतं सुग्रीव सम्मानितं देवेन्द्रादि समस्तदेव विनुदं काकुत्स्थं तूदं भजे. राम 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 राम. சரி ராம 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 ராம.
ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम रामाय नमः, ओम रामभद्राय नमः, ओम रामचंद्राय नमः, ओम वेदसे नमः, ओम रघुनाथाय नमः, ओम नादाय नमः, ओम सीताय पदये नमः, ओम दाशरथये नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अद सुंदरकांडः प्रथम सर्गः सागरलंघनं ततो रावणनीतायः सीतायः शत्रुघर्षणः येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पदि दुष्करं निष्प्रदित्वन्त्वं चिकीर्षन् कर्म वानरः समुदक्रशिरोग्रीवो गवां पदिरिवो बभौ अदवैदुर्यवर्णेषु शात्फलेषु महाबलः धीरः सलिलकल्पेषु विचचार यदा सुगं तुजान् वित्रासयन् धीमान् पुरसा पादवान् हरन् मृगांश सुबहुन्निक्तन् प्रवृत्तैव केसरी नीललोहितमाञ्जिष्ट पत्रवर्णैः सिदासिदैः स्वभावविहितश्चित्रे दादुभिः समलङ्कृतम् कामरूपिभिराविष्टम् अभीष्टं सपरिच्छदैः यक्षकिन्नरगन्धर्वैः देवकल्पश्च पण्डकैः स तस्य गिरिवर्गस्य तलेनाघवरायुधे दिष्टन् कविवरस्तत्र हृदेनाघ इवा बभौ स सूर्याय महेन्द्राय पवनाय आत्मयोनये भूदेभ्यश्च अञ्जलिं कृत्वा चकार गमने मदिम् अञ्जलिं प्राङ्मुखः कुर्वन् पवनाय आत्मयोनये ततो हि वव्रते गन्तुं दक्षिणां दिशं प्रवङ्गप्रवरे दृष्टः प्लवने कृतनिश्चयः वव्रते रामवृत्त्यर्थं समुद्रैव पर्वसु निष्प्रमाणशरीर लिलङ्ग इषुरार्णवं बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतं स चचाल अचलश्चापि मुहूर्तं कविपीडितः तरुणां पुष्पिताक्राणां सर्वं पुष्पम् असादयत् देन पादवमुक्तेन पुष्पौकेन सुगन्धिना सर्वदा संवृतशैलो अभो पुष्पमयो यदा तेन च उत्तमवीर्येण वीड्यमान स पर्वतः सरलं संप्रशुस्राव मदं मत्त इवत्पिबः वीट्यमाणस्तु बलिना महेन्द्रस्तेन पर्वतः सीदि निर्वर्तयामास काञ्चनाञ्चनराजदीः मुमोचच्च शिलाशैलो विशाला सुमनशिलः मध्यमेन अर्चिषा जुष्टो धूमराजिरिवाणलः गिरिना वीट्यमानानि सर्वतः मुखाविष्टानि भूतानि विनेतुर्विवृतैस्परैः स महासत्त्वसन्नादः शैलपीडा निमित्तजः पृथिवीं पूरयामास यशश्चोप उपवनानि च शिरोपि पृथिवी सर्वा व्यक्तस्वस्तिकलक्षणैः वमन्तपावकं घोरं तदंशुर्दशनैर्शिलाः तास्तदा सविषैर्दष्टाः कुपितैस्तैर्महाशिलाः जज्वलुः पावकोद्दीप्ता विविधश्च सहस्रता यानि च औषधजालानि तस्मिन् जातानि पर्वते विषक्तान्यभिदाहाणं न शेकुः शमितं विषं विद्यते अयं गिरिमूदैः इति मत्वा तपस्विनः त्रस्ता विद्याधरास्तस्मात् उद्वेदुः स्त्रीगणैः सह पाणभूमिकदं हित्वा हैममासवभाजनं पात्राणि च महार्काणि करकां च हिरण्मयान् लेह्यान् उच्चावचान् भक्ष्यान् मांसानि विविधानि च आश्रपाणि च चर्माणि गड्कांश्च कडहत्सरोन् कृतकण्ठगुणः क्षीपा रक्तमाल्याणलेपनः रक्ताक्षा पुष्कराक्षाश्च गगनं प्रतिपेदिरे पारनूपुरकेयूर पारिहार्यधरास्त्रियः विस्मिता सस्मितास्तस्तुराकाशे रमणैः सह दर्शयन्तो महाविद्यां विद्याधरमहर्षयः सप्रियस्तस्तुराकाशे वीक्षां चक्रुश्च पर्वतं शुश्रुवश्च तदा शब्दं ऋषीणां
भाविदात्मनां चारणानां च चित्तानां स्थितानां विमले अम्बरे एष पर्वतसङ्काशो हनुमान् मारुतात्मजः तिदिर्षदि महावेगः सागरं महरालयं रामार्थं वानरार्थं च चिकित्सन् कर्म दुष्करं समुद्रस्य परं भारं दुष्प्रापं प्राप्तुमिच्छति इति विद्याधरः श्रुत्वा वशस्तेषां तपस्विनां तम् अप्रमेयं ततृषुः पर्वते वानरशपं दुदवे च स रोमाणि चकम्पे च अचलोपमः ननाद सुमहानादं स महानिव दोयदः आनुपूर्व्येन वृत्तं च लाङ्गूलं रोमविश्चितम् उत्पदिश्यन् विचिक्षेप पक्षिराज इवोरकं तस्य लाङ्गूलम् आवित्तम् आत्तवेगस्य पृष्ठतः ततृषे गरुडवेगेन ह्रियमाणो महोरगः बाहुसंस्तम्भयामास महापरिगसन्निभौ ससादच्च कविपगट्यं चरणं संचुकोच च संहृत्य भुजौ श्रीमां तदैव च शिरोधरां देजसत्त्वं तदा वीर्यम् आविवेशच्च वीर्यवान् मार्गमालोकयन् दूरात् ऊर्ध्वं प्रणिहिते क्षणः रुरोध हृदये प्राणान् आकाशम् अवलोकयन् पथ्यं दृढमवस्थानं कृत्वा स कविकुञ्जरः निकुञ्च कर्णो हनुमान् उत्पदिश्यन् महाबलः वानरान् वानरश्रेष्ठ इदं वचनम् अब्रवीत् यदा राघव निर्मुक्तः शरस्पशनविक्रमः गच्छेत् तत्तत् गमिष्यामि लङ्कां रावणपालितां न हि रक्ष्यामि यदि वदां लङ्कायां जनकात्मजाम् अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयं यदि वा त्रिदिवे सीतां न द्रक्ष्यामि कृतश्रमः बद्ध्वा राक्षसराजानाम् आनयिष्यामि रावणं सर्वदा कृतकार्यो अहं येष्यामि सह सीतया आनयिष्यामि वा लङ्कां समुत्पाट्य रसरावणाम् एवमुक्त्वा तु हनुमान् वानरान् वानरोत्तमः उत्पपातात् वेगेन वेगवान् अभिचारयन् सुपर्णमेव चात्मानं मेने स कविकुञ्जरः समुत्पतति तस्मिंस्तु वेगात्ते नगरोहिणः संहृत्य विडवान् सर्वान् समुत्पेतुः समन्ततः स मत्तकोयष्टि भगान् बाधवान् पुष्पशालिनः उत्पहन् ऊरुवेगेन जगाम विमले अम्बरे उरुवेगत्त वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः तस्थितं तीर्थमत्वानं स्वबन्तुमिव बान्धवाः तत् उरुवेगोन्मदिताः शालाश्चान्य नहोत्तमः हनुमन्तं सैन्या इव महीपतिं स पुष्पिताग्रे बहुभिः पादवैः अन्वितकविः हनुमान् पर्वताकारो बभुवात अद्भुतदर्शनः सारवन्त अदये वक्ष न्यमज्जल्लवणाम्बसि वयादिव महेन्द्रस्य पर्वता वरुणालये स नानाकुसुमैः कीर्णः कवि अङ्गुरोगोरकैः सुषुभे मेकसङ्कासः कत्योदैर्यव पर्वतः विमुक्तस्तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि रेत्रमः अवसीद्यन्तसलिले निवृत्ता सुहृदयदा लघुत्वेनोपपन्नं तद्विचित्रं सागरे अवदत् प्रमाणं विविधं पुष्पं कविवायुसमीरितं पुष्पौकेन अणुवित्तेन नानावर्णेन वर्णरः पवोमेघ इवोत्यन्वै विद्युद्गणविभूषितः तस्य वेगसमाहूतैः पुष्पैस्तोयो अदृश्यत दाराभिरविरामाभिर्मुदिताभिरिवाम्बरं तस्याम्बरगतो बाहु ततृषादे प्रसारितौ पर्वताक्रान्ते विनिष्क्रान्तो पञ्चास्त्याभिव वर्णकौ विपन्निप पवो श्रीमान् शोर्मिमालां महार्णवं पिपासुर्यव चाकाशं ततृषेत्स महाकविः तस्य विद्युत् प्रभाकारे वायुमार्गानुसारिणः नयन सम्प्रकाशेते पर्वतस्ताभिवाणलौ पिङ्गे पिङ्गाक्षमुख्यस्य बृहदि परिमण्डले चक्षुषि सम्प्रकाशेते चन्द्रसूर्या विबोधितौ मुखं नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमाबुभौ सन्त्यया समभिपृष्टं यदा सूर्यस्य मण्डलं ताङ्गूलं च समावित्तं प्लवमाणस्य शोभते अम्बरं वायुपुत्रस्य सक्रध्वज इवोच्छ्रितः लाङ्गूलचक्रेण महान् शुक्लतंष्ट अनिलात्मजः विरोचत महाप्राप्तः परिवेशीव भास्करः स्पिक्टेशेन अधिताम्रेण रजाजस्य महाकविः महदादारिदेनेव गिरिगैरिगधातुना तस्य वानरसिंहस्य प्लवमाणस्य सागरं पक्षान्तरगतो वायुर्जीमूत इव गर्जते के यदा निबन्धन्ते उल्का हृत्तरान्तात् विनिसृता दृश्यते सानुबन्ता च तथा स कविकुञ्जरः
पदत्पदङ्गसङ्गासो व्यायते कुशुभे कविः प्रवृत्त इव मादङ्गः कक्षया बध्यमाणया उपरिष्टात् शरीरेण छायाया सावगाढया सागरे मारुदाविष्टा नौरिवासित् तदा कविः यं यं देशं समुद्रस्य जगामस्य महाकविः स दस्यो उरुवेगेन सोन्माद इव लक्ष्यते सागरस्योर्मिमालानां मुरसा शैलवष्मणा अभिज्ञंस्तु महावेगः पुप्लिवेत् स महाकविः कविवादश्च बलवान् मेघवादश्च निःस्पृहः सागरं भीमनिर्घोषं कम्पयामासुदुर्पृशम् विकर्षन् ऊर्मिजालानि प्रहन्ति लवणाम्बसः पुप्लिवे कविसाधूलो विकरन्निव रोदसी मेरुमन्थरसङ्गासन् उद्गदान्यस्य महार्णवे अत्यक्रामन् महावेगस्तरङ्गान् गणयन्निव तस्य वेगः समुत्तोदं जलं स जलतं तदा अम्बरस्तं विभुप्राज शारदाप्रं विवादतं किमिनक्रजशा कूर्मा दृश्यन्ते बहुधास्तदा वस्त्र अपकर्षणेनैव शरीराणि शरीरिणां प्लवमानं समीक्ष्याद भुजङ्गसागरालयाः एवं नित्यं कविसाद्वलं सुवर्ण इव मेणिरे दशयोजनविस्तीर्ण 30 योजनमायदा छायावाणरसिंहस्य जलेच्छारुधराभवत् श्वेतप्रगणराजीव वायुपुत्रानुगामिनी तस्य च शुशुभे छाया विदधा लवणाम्बसी शुशुभेत्स महादेज महाकाय महाकविः वायुमार्गनिरालम्ब्य पक्षवाणिव पर्वतः येनासु यादि बलवान् वेगेन कविकुञ्जरः तेन मार्गेण सकसा द्रोणीकृत इवार्णवः आबादे पक्षसङ्गानां पक्षराज इवाबभौ हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन् मारुदो यदा प्रविशन् अप्रजालानि निष्पदं च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते पाण्डरा अरुणवर्णानि नीलमाञ्जिष्टकानि च कविना कृष्यमाणानि महाभ्राणि सकाशिरे प्लवमानं तुदं दृष्ट्वा प्लवकं त्वरितं तदा पौरुषुः पुष्पवर्षाणि देवगन्धर्वचारणः तदा नहितं सूर्य प्लवन्तमाणरेश्वरं शिशवे च तदा वायु रामकार्यार्थसिद्धये प्रशयसुष्टुवर्श्चैनं प्लवमानं विहाय सा जगुश्च देवगन्धर्वः प्रशंसन्दो महोजसम् आकाश्य दुष्टुर्यक्षा रक्षांसि विबुधा गकाः प्रेक्ष्याकाशे कविवरं सकसा विगतक्लमं तस्मिन् प्लवकसाद्वले प्लवमाणे हनुमति इक्ष्वाकुकुलमाणार्ति चिन्तयामास सागरः साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनुमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम् अहम् इक्ष्वाकुनादेन सागरेण विवर्तितः इक्ष्वाकुसचिवश्चायं नावसीदितुमर्हति तदा मया विदातव्यं विश्रमेद यदा कविः शेषं च मयि विश्रान्तः सुखेन अधिपदिष्यति इति कृत्वा मदिं साप्तिं समुद्रश्चन्नम् अम्बसि हिरण्यनाभं मैनाकम् उवाच गिरिसत्तमम् त्वम् इहासुरसङ्गाणं पादालतलवासिनां देवरत्नगिरिश्रेष्ठपरिगः सन्निवेशितः त्वमेषं जातविद्यानां पुनरेव उत्पदिश्यतां पादलस्य अप्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि दिव्यगुत्वम् अधश्चैव शक्तिस्ते शैलवर्तितुं तस्मात् संशोधयामि त्वाम् उत्तिष्ठ नरसत्तम स एष कविसाधुलस्त्वाम् उपैष्यति वीर्यवान् हनुमान् रामकार्यार्थं भीमकर्म कमप्लुतः अस्य साख्यं मया कार्यम् इक्ष्वाकु हितवर्तिनः मम इक्ष्वाकवः पूज्याः परम पूज्यतमास्तव गुरुसाचित्यम् अस्माकं नडक्कार्यम् अधिक्रमेत् कर्तव्यम् अकृतं कार्यं सदा मञ्जुम् उदीरयेत् सरलत्वोत्तम उत्तिष्ठ दिष्टत्वेष कविस्त्वयि अस्माकम् अतिथिश्चैव पूज्यश्च प्लवदाम्बरः चामीगर महानाभ देवगन्धर्व सेवित हनुमांस्त्वयि विश्रान्तस्ततशेषं गमिष्यति काकुत्स्थस्य आन्ध्रशंस्यं च मैथिल्याश्च विवासनं श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्ष्योत्तादुमर्हसि हिरण्यनाभो मैनाको निशम्य लवणाम्बसः उत्पपादजलात्पूर्णं महात्रमलदायुधः स सागरजलं व्यत्वः बभुवाप् उत्थितस्तदा यदा जलधरं व्यत्वः दीप्तरश्मिर्दिवाकरः स महात्मा मुहूर्तेन पर्वतसलिलाव्रतः दर्शयामास शृङ्गाणि सागरेण नियोजितः साधुकुम्भमयैः शृङ्गैः सकिन्नरमहोरकैः आदित्योदयसङ्गासे आलिगद्भिरिवाम्बरं
सप्तजाम्बुनदे शृङ्गः पर्वतस्य समुत्थितः आकाशं शस्त्रसङ्कासम् अभवत् काञ्चनप्रभं जातरूपमयूर्शृङ्गे विराजमानैः स्वयं प्रभः आदित्य शतसङ्कासः सोम अभविद् गिरिसत्तमः समुत्थितम् असङ्ख्येन हनुमान् अक्रतस्थितं मध्य लवणभोग्यस्य विघ्नो अयमिति निश्चितः स तमुच्चरितमत्यर्थं महावेगो महाकविः वरसा पादयामास जीमुदमिव मारुतः स तदा पादितस्तेन कविना पर्वतोत्तमः बुद्ध्वा तस्य कवेर्वेगं जहर्षश्च ननादश्च अमाकाश कथं वीरमाकाशे समुपस्थितः प्रेतहृष्टमणा वाक्यमब्रवीत् पर्वतकविं मानुषं धारयन् रूपम् आत्मनः शिखरे स्थितः दुष्कृतं कृतवान् कर्म त्वमिदं वानरोत्तम निपत्य मम शृङ्गेषु विश्रमस्व महा यदा सुगम राघवस्य कुले जातिर्वदतिः परिवर्तितः सत्वं रामहिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागरः प्रत्यर्च प्रतिकर्तव्यं येष धर्मः सनातनः स्व अयं तत् प्रतिकारार्थी ततः सम्मानम् अर्हति तन्निमित्तमनेनाहं बहुमानात् प्रचोदितः योजनानां सदं चापि कविरेष कमाप्तः ततसानुष विश्रान्त शेषं प्रक्रमतामिति दृष्टत्वं हर्षादोलमयविश्रम्य गम्यतां तदिदं गन्धवत् स्वादुः कन्दमूलफलं बहु तदा स्वात्य हरिश्रेष्ठ विश्रम्य स्वो गमिष्यसि अस्माकमपि सम्बन्धः कविमुख्य त्वयास्ति वै प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुण परिग्रहः वेगवन्त प्लवन्त्वय्य प्लवकमार्दत्वज तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कविकुञ्जर अदिति किल पूजार्थ प्राकृताभिजानद धर्मं जिज्ञासमानेन किं पुनर्यातृशो भवान् त्वं हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृश कविकुञ्जर पूजते त्वयि धर्मज्ञ भूजं प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणं पूर्वं कृतयुगे ताद पर्वता पक्षिणो अभवन् दे अभिजग्मुर्दिश सर्वः गरुड अनिलवेगिनः ततस्तेषु प्रयादेषु देवसङ्गसहर्षिभिः भूतानिच्च भयं जग्मुस्तेषां पवनसङ्गया तदकृत्य सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः पक्षं चिच्छेद वज्रेण तत्र सहस्रशः स माम् उपगतः कृत्वा वज्रमुत्यम्य देवरात्रे तदाहं सहसाक्षिप्तः स्वसनेन महात्मना अस्मिन् लवणद्वये च प्रक्षिप्तप्लवकोत्तम गुप्तपक्षसमक्रश्च तव पित्राभिरक्षितः तदाहम् आनयामि त्वां मान्यो हि मम मारुतः त्वया मे ह्येष सम्बन्धः कविमुख्य महागुणः अस्मिन् एवं गदे कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिं प्रीतमना कर्तुं तमस्य महाकवे सममक्षय पूजां च गृहाण कविसत्तम प्रीतिश्च बहुमान्यस्य प्रीतो अस्मि तव दर्शनात् एवमुक्त कविश्रेष्ठस्तं नभोत्तमम् अब्रवीत् प्रीतो अस्मि कृतमादित्यं मन्युरेषु अवनीयतां परदे कार्यकालो मे ह्यहस्य व्यधिवर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यम् इहान्तरा इत्युक्त्वा प्राणिनः शैलमालभ्य हरिपुङ्गवः जहमाकाशमाविश्य वीर्यवान् प्रहसन्निव स पर्वतसमुत्प्राप्त्यां बहुमानात् अपेक्षितः भूयितश्च उपपन्नाभिर् आसीद्भिर् अनिलात्मजः अतो त्वं उत्पत्य हित्वा शैलमहार्णवं पितुपन्थानम् आस्थाय जहाम विमले अम्बरे ततश्च ऊत्पगतिं प्राप्य गिरिं तम् अवलोकयन् वायुसूनुर्निरालम्बे जगाम विमले अम्बरे तत्तदीयं हनुमदो दृष्टः कर्म सुदुष्करं प्रशंसो सुरा सर्वे सिद्धाश्च परमश्रेयः देवताश्च अभवन् हृष्टस्तत्रस्तस्य कर्मणा काञ्चनस्य सुनापस्य सहस्राक्षस्य वासवः उवाच वचनं श्रीमान् परितोषात् सगद्गतं सुनाम पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव सचीपतिः हिरण्यनाभ शैलन्त्र परितुष्टास्मि ते वृषम् अभयं ते प्रयच्छामि दृष्टसौम्य यदा सुखं साख्यं कृतं त्वया सौम्यः विक्रान्तस्य हनुमतः प्रमदो योचनसदं निर्भयस्य भये सति रामस्य हितायैव यादि दाशरथेर्हतिः सत्क्रियां कुर्वदा तस्यः दोषित अस्मि वृषं त्वया तदप्रहर्षम् अहमत् विपुलं पर्वतोत्तमः देवदानं पतिं दृष्ट्वा परिदुष्टं शतक्रतं सवे तत्तवरः शैलः भगवा अवस्थितस्तदा हनुमश्च मुहूर्तेन गदिचक्रां सागरं तदो देव स गन्धर्वा सिद्धाश्च परमश्रेयः अपूर्वन् सूर्यसङ्गासं सरसं नागमादरम् अयं वादात्मज श्रीमान् प्लवदे सागरोपरि हनुमान् नाम तस्य त्वं मुहूर्तं किन्न विक्तमाचर राक्षसं रूपमास्ताय सुघोरं पर्वतोपमं दंशाकरालं भिङ्गाक्षं
रक्तं कृत्वा नभस्पृशं बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य महापराक्रमं तां विजयष्यत् उपायेन विषादं वा गमिष्यति एवं तत् सा दैवतै अभिसत्कृता समुद्रमध्ये सरसा बिप्रति राक्षसं बभुः विकृतं च विक्रूपं च सर्वस्यच्च भयावहं प्लवमाणं हनुमन्तम् आवृत्येदम् उवाचः मम पक्षप्रतिष्ठस्त्वम् ईश्वरैर्वाणरसव अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविषेदममाननम् एवमुक्तः स्वरस्य प्राञ्जलवानरसवः प्रशिष्टवदनः श्रीमान् सुरसां वाक्यमब्रवीत् रामो दाशरथि श्रीमान् प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह प्रात्रा वैदेह्याच्चाभिवाद्यया अन्यकार्ये विषक्तस्य तत्त्ववैरस्य राक्षसैः तस्य सीता हृदा भाग्य रावणेन यशस्विनी तस्याः सकाशं दूत अहं गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साख्यं विषये वासिनी अथवा मैथिलीं हृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रति शृणोमि ते एवमुक्ता हनुमदा सरसा कामरूपिणी अप्रविन्नादिवर्त्यन्मां कश्चिदेषत् करो मम तं प्रयान्तं समुत्प्रेक्ष्य सरसा वाक्यमब्रवीत् फलं जिज्ञासमाना वै नागमादा हनुमतः प्रविश्य वदनं मे अद्य गन्तव्यमाणदत्तम परयेष पुरा दत्त मम रात्रेण सत्वरा व्यादाय वक्त्रं विपुलं स्थिता सा मारदे पुरः एवमुक्तः सरसया कृत्वा वानरपुङ्गवः अब्रवीत् कुरु वै वक्त्रं येन मां विषहिष्यसे इत्युक्त्वा सरसां कृत्वा दशयोजनमायुधां दशयोजनविस्तारो बभूव हनुमस्तदा तां दृष्ट्वा मेघशङ्कासं दशयोजनमायुधं चकार सरसाप्यास्त्यं विंशत्योजनमायुधं तद्दृष्ट्वा व्याधितं चास्यं वायुपुत्र सुबुद्धिमान् दीर्घचक्वं सरसया सुघोरं नरकभवं स संक्षिप्त्यात्मनः कार्यं जीमूदैव मारुतिः तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् बभूव अङ्गुष्ठमात्रकः स्व अभिवत्यासु तत्पत्र निष्पत्त्यश्च महाजपः अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमान् इदं वचनमब्रवीत् प्रविष्टस्मि हृदे वक्त्रं दाक्षायणी नमस्तुते गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चासीत् परस्तव तं दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चन्द्रं राहुमुखादिव अब्रवीत् सरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम् अतसिद्धि हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यदा सुखं समानयस्व वैदेहीं राघवेन महात्मना तत्प्रदीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसुदुष्करं साधु सात्विति भूतानि रक्षसंस्तदा हरिं जगमाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपमः सेविदे वारिताराभिः पर्वतश्च निषेविदे सरिदे कैशिकाचार्य ऐरावति निषेविदे सिंहकुञ्जरसादूल पदगोरकवाहनैः विमाने सम्पदश्च विमलैः समलं कृते वज्रासनी समागतादिः पावकैरुपशोभिते कृतपुण्यैर्महाभागैः स्वगज्जिद्भिरलङ्कृते महतः हव्यमत्यर्थं सेविते चित्रबाणना ग्रहनक्षत्र चन्द्रार्क धारागण विभूषिते महर्षिगण गन्धर्व नागयक्ष समाकुले विविक्ते विमलेत विस्पृहे विस्पावस ऋषेविदे देवराज गजाक्रांते चंद्रसूर्य पदे स्त्री शिवे विधाने जीवलोकस्य विदते ब्रह्म निर्मिते बहुश सेविधे वीरैर् विद्याधर गणैर्वरैः जघम वायुमार्गच्च गत्मानिव मारुतिः हनुमान मेघचालानि प्रकर्षन् मारुतो यदा कालाघुर सवर्णानि रक्तपीतसितानि च कविना हृष्यमानानि महाप्राणि चकर्षिते कविशन् अप्रचालानि निष्पदं च पुनः पुनः प्रविशन्तु युवावादि निष्पदं प्रविशंस्तदा तदृश्यमाणः सर्वत्र हनुमान् मारुतात्मजः बेज अम्बरं निरालम्बं लम्बपक्ष इव त्रिराट्टे प्लवमाणं दुदं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी मनसा चिन्तयामास प्रवृत्ता कामरूपिणी अत्यधिकस्य कालस्य भविष्यम् अहमाशिता इदं हि मे महत् सत्त्वं शरस्य वशमाहदम् इति संचिद्य मनसा छायामास्य समाक्षिपत् छायायां गृह्यमाणायां चिन्तयामास वानरः समाक्षिप्तास्ति सकसा पङ्गुकृतपराक्रमः प्रतिलोमेन वादेन महानौरिव सागरे दीर्घगोत्तम् अधश्चैव वीक्षमाणस्ततः कविः तदर्शस्य महत्सत्त्वम् उद्यतं लवणाम्बसः तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुति विकृताननं कविराजेन कथितं सत्त्वम् अद्भुतदर्शनं छायाग्राह्य महावीर्यं
तदिदं नात्र संशयः सदाम मुत्पार्थतत्त्वेन सिंहिकां मदिमान् कविः जगत्तदमहाकायप्रावृषिवलाहकः तस्यत् सा कायमुत्प्रेक्ष्य तदर्थमाणं महाकविः वक्त्रं प्रसारयामास पादालान्तरसन्निभम् वनराजेव कर्जन्ति वानरं समभित्रवत् तदर्श ततस्तस्या निवृतं सुमहन्मुखं कायमात्रं च मेधावी मर्माणि च महाकविः स तस्या विरुद्धे वक्त्रे वज्रसंहरण कविः संक्षिप्य मुखरात्मानं निपपाद महाबलः आस्य तस्याः निमज्जन्तं तदृशो स्थितचारणः रस्यमाणं यदा चन्द्रं पूर्णं पर्वणि दाहुना ततस्तस्य नगैस्तीक्ष्णैर्मर्मन् उत्कृत्य वानरः उत्तपादात् वेगेन मनसंवादविक्रमः तान् दृष्ट्वा दृष्ट्या चतुर्थ्या च दाक्षिण्येन निवात्य हि स कविप्रवरो वेगात् बभृते पुनरात्मवान् हृदहृत् सा तनुमदा पपाद विद्राम्बसि स्वयंभुवैव हनुमान् सृष्टस्तस्या विनाशने तां हदा वानरेणाशु पतितां वीक्ष्य सिंहिकां बोधान् आकाशचारिणी तमूचुः प्लवकोत्तमं भीममत्य कृतं कर्मः महत्सत्त्वं त्वया हतं साधयार्थम् अभिप्रेतम् अरिष्टं प्लवदाम्बर यस्यत्वेदानि चत्वारि वानरेन्द्र यदा तव स्मृतिर्मदिर्दाक्ष्यं स कर्मसु न सीदति सदै सम्भावितपूज्यः प्रतिपन्न प्रयोजनः जगमाकाशमाविश्य पन्नक आसनवत् कविः प्राप्तभूयिष्ठपारस्तु सर्वदा कृतिलोकयन् योजनानां सदस्यान्ते वनराज्यं तदर्शश्च पदन्नेव वेदिवत् विविधत् त्रमभूषितं दीपं साहं मृगश्रेष्ठो मलयो उपवनानि च सागरं सागरानोपं सागरान्नोपजान् ध्रुवान् सागरश्च पत्नीनां मुखान्यपि विलोकयन् स महामेघसङ्गासं समीक्ष्य आत्मानम् आत्मवान् निरन्तन्तमिवाकाशं चकार मदिं आयवृत्तिं प्रवेगं च मम दृष्ट्वैव राक्षसः मयि कौतुकफलं कुर्युर्यदि मेने महाकविः तदा शरीरं संक्षिप्य तन्महीधरसन्निभं पुनः प्रकृतिमापेदे वीतमोह इवात्मवान् तद्रूपमधिसंक्षिप्य हनुमान् प्रकृतौ स्थितः क्रमाणिव विक्रम्य बलिवीर्य हरो हरिः स चारु नानाविधरूपधारी परं समादाय समुद्रतीरं परैरशक्यं प्रतिपन्नरूपः समीक्षितात्मा समपेक्षिताप्तः तदत्स लम्बस्य गिरे संवृत्ते विचित्रकूडे निपपादकूडे सखेदकोत्तालक नारिकेले महात्रिकूड प्रतिम महात्मा ततस्तु संप्राप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य लङ्का गिरिराजमूर्त्नि कविस्थ तस्मिन् निपपादपर्वते विदूयरूपं व्यदयन् बृहत्भुजान् सागरं दानव पन्नकायुधं बलेन विक्रम्य महोर्विमालिनं निवत्य तीरे च महोदधिस्तदा तदर्श लङ्काम् अमरावतीं इव इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रायां संहितायां सुन्दरकाण्डे सागरलङ्घनं नाम प्रथमसर्गः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः गोपिका जमनस्मरण गोविंद गोविंद। जानेकान्तस्मरणं जय जय राम राम। तृतीय सर्गः निशागमन प्रतीक्षा सागरम् अनादृश्यम् अतिक्रम्य महाबलः त्रिकूटशिखरे लङ्कां स्थितो स्वस्थो तदर्शः ततः पार्वमुक्तेन पुष्पवर्षेण विद्यवान् अविवृष्टः स्थितस्तत्र कवौ पुष्पमयो यदा योजनानां सदं श्रीमान् तीर्थाप्युक्तमः विक्रमः अनिस्वदन् कविस्तत्र न क्लानिम् अधिगच्छति सदान्यहं योजनानां क्रमेयं सुमहन्यवि किं पुनः सागरस्यान्तं सङ्ख्यातं सदयोजनं सद्विद्यवदां श्रेष्ठः प्लवदामपि दोषोत्तमः जगाम वेगवान् लङ्गां लङ्घयित्वा महोदधिं सात्फलानि च नीलानि गन्धवन्ति वनानि च गन्धवन्ती च मध्येन जगाम नभवन्ति च शैलांश्च दर्भिश्चन्नान् वनराजीश्च पुष्पितः अभिचक्रामि तेजस्वी हनुमान् प्लवकर्षभः तस्मिन् अचले दृष्टन् वनानि उपवनानि च स नकुलः गृहे स्थितां लङ्गां तादर्श पवनात्मजः सरलान् कनिकारांश्च गर्जरांश्च सुपुष्पितान् प्रियालान् मुचलिन्दांश्च पुडजान् केदखानपि प्रियङ्गुन् गन्धपूर्णाश्च नीवान् सप्तशतांस्तदा आसनान् कोपितांश्च
करवीरांश्च पुष्पितान् पुष्पभार निबत्तांश्च तदा मुगुलितानपि पादपान् विहगागीर्णान् पवनातोदमस्तकान् हंसकारण्डवाकीर्णः वाभिः पद्मपलायुधाः आक्रीडान् विविधान् रम्यान् विविधांश्च जलाशयान् सन्ददानि विविधे वृक्षैः सर्वत्र फलपुष्पितैः उद्यानानि च रम्याणि तदर्श कविकुञ्जरः समासाद्य लक्ष्मी वां लङ्गां लावणपालितां परिकाभिः सवत्पाभिः स्वत्फलाभिरलङ्कृतां सीतापहरणोत्तम हरणत्वेन रावणेन सुरक्षितां समन्ताद् विचरद्विष्टः राक्षसैः कामरूपिभिः काञ्चनेन आवृतां रम्यां प्राहारेण महापुरीं वृकैश्च रहसङ्काशैः शारदाः अम्बुदसन्निभैः पाण्डराभिः उच्चाभिसम्प्रदाम् अट्टालक सदाकीर्णां पदाकत्पजमालिनीं धोरणैः काञ्चने दीप्तं तदा पङ्क्तिविचित्रतीः तदर्शं हनुमान् लङ्गां दिभिः देवपुरीमिव गिरिमूर्तिः स्थितां लङ्घः पाण्डारैः भवने शुभैः स तदर्श कविः श्रीमान् पुरम् आकाशगतुकं यदा पालितं राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकर्मणा प्लवमाणामिवाकाशे ततश्च हनुमान् पुरीं अप्रप्राहार जगनां विपुलाम्बुवनाम्बरां सदक्ते सोलकेशान्तम् अट्टालक पदं सुगां मनसेव कृतां लङ्कां निर्मितां विश्वकर्मणा द्वारम् उत्तरमासाद्य चिन्तयामास वानरः कैलासे निलय प्रत्यमालिगन्तम् इवाम्बरं दीयमानं इवाकाशम् उच्यते भवनोत्तमैः साम्बुनां राक्षसैः घोरैः नागैर्भोगवतीम् इव अचिन्त्यां सुखदां स्पष्टां कुबेरात्युषितां पुरा दंशभिर्बह्वीः सूरैः स्थूलपट्टिशपाणिभिः रक्षितां राक्षसैः घोरैः गुहामाशी विषैरिव तस्याश्च महतीं कुप्तिं सागरं च समीक्ष्य सः रावणं च रिपुं घोरं चिन्तयामास वानरः आगत्याभिः हरयो भविष्यन्ति निरतकाः न हि उत्तेन वै लङ्गा सख्या जेतुं सुरैरवि इमां तु विषमां दुर्गां लङ्कां रावणपालितां प्राप्याभिः स महाबाहु किं करिष्यति राघवः अवकाशो न शान्तस्य तस्याश्च महतीं गुप्तिं सागरं च समीक्ष्य सः रावणं च रिपुं घोरं चिन्तयामास वानरः आगत्याभिः हरयोः भविष्यन्ति निरतकः न हि युद्धेन वै लङ्का सख्या जेतुं सुरैरवि इमां तु विषमां दुर्गां लङ्कां रावणपालितां प्राप्यामि स महाबाहो किं करिष्यति राघवः अवकाशो न शान्तस्य राक्षसे स्वाभिगम्यते न दानस्य न भेदस्य नैव युद्धस्य दृश्यते चतुर्णां एव हि गतिर्वानराणां महात्मनां वालिपुत्रस्य नीलस्य मम राक्षस्य धीमतः यावज्जानामि वैदेह्यं यदि जीवति बाणव तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्ट्वा तां जनकात्मजां ततः चिन्तयामास मुहूर्तं कविकुञ्जरः गिरिशृङ्गे स्थितस्यास्मिन् रामस्याप्युदये रथः अनेन रूपेण मया न सख्या रक्षसां पुरी प्रवेष्टुं राक्षसैर्गुप्तः गुरैर्बलसमन्वितैः उग्रजसो महावीर्य बलवन्तश्च रक्षसः वञ्जनीया मया सर्वैः जानकीं परिमार्गदा लक्ष्यालक्ष्येन रूपेण साधुः लङ्कापुरी मया प्रवेष्टुं प्राप्तकालो मे सत्यं साधयितुं महत् तां पुरीं तादृशीं दृष्ट्वा पुत्रादर्शां सुरासुरैः हनुमां चिन्तयामास विनिस्वास्य मुहुर्मुहुः केनोपायेन पश्येयं वैदिलीं जनकात्मजाम् अतुष्टुः राक्षसेन्द्रस्य रावणेन दुरात्मना न विनिश्येत् कथं कार्यं रामस्य विदितात्मनः एकमेकश्च पश्येयं सहिते जनकात्मजां बोधश्च विपद्यन्ते देशकालविरोधिताः विक्लवं दूतमासाद्य
तम सूर्योदके यदा अर्थानन्तरे वृत्त निश्चितापि न सोपदे साधयन्ति हि कार्याणि तोदः पंडितमान्यः न विनश्यत् कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं भवेत् लङ्घनं च समुद्रस्य कथं न भवेत् वृथा मयि दृष्ट्यस्तु रक्षोभिः रामस्य विदितात्मनः भवेत् व्यर्थमिदं कार्यं रावणान् अर्थमिच्छितः न हि शक्यं क्वचित् स्थातुम् अभिज्ञातेन राक्षसैः अभिः राक्षसरूपेण विमुदाङ्गेन केनचित् वायुरप्यत्र नाज्ञातश्चरेदिति मतिर्मम न ह्यस्य अविदितं किञ्चित् राक्षसाणां बलीयसाम् इहाहं यदि दृष्टामि स्फेनरूपेण संवृतः विनाशम् उपयास्यामि वर्तरर्थश्च हीयते तदहं स्फेनरूपेण रजन्यं तस्पदां गतः लङ्काम् अभिगमिष्यामि राघवस्य अर्थसिद्धये रावणस्य पुरीं रात्र प्रविश्य सुदुरासदां विचिन्वन् भवनं सर्वं रक्ष्यामि जनकात्मजाम् इति संचिन्त्य हनुमान् सूर्यस्य अस्तमयं कविः आशकाङ्क्षे कदा वीरो दे वैदेह्यो वैदेह्य आशकाङ्क्षे तदा वीरो वैदेह्य दर्शनोत्सुकः सूर्यचास्ते कदे रात्र देहं संहृत्य मार्धि पृषदंसकाम् अत्र सन् कबु अद्भुत दर्शनः प्रदोषकाले हनुमंस तद्वर्णम् उत्प्लुत्य विद्यमान् त्रैवेश पुरीं रम्यं स विभक्तं महापदां तासादमालाय विददां स्तम्भे काञ्चनराजनैः साधुकुम्भमयज्जाले गन्धर्वनगरोपमां शब्दम् औवाष्ट भौमश्च स ददर्श महापुरीं तलैः स्फाटिकसङ्कीर्णैः कान्तस्वरविभूषितैः वैदुर्यमणिचित्रश्च मुक्ताजालविराजितैः तलैः सुशिबिरे दानि भवनानि यत्र रक्षसां काञ्चनानि विचित्राणि दोरणानि च रक्षसां लङ्काम् उत्रुदो यामासु सर्वतः समलं कृताम् अचिन्त्यम् अद्भुताकारं दृष्ट्वा लङ्कां कविः आसीत् विषन्ने आसीत् विषण्णो हृष्टस्य वैदेह्या दर्शनोत्सुकः स पाण्डुरत्ते विमानमालिनीं महाजाम्बूनदजालतोरणां यशस्विनां रावणबाहुपाणिनां सभाचरैर्भीमबलैः समावृतां सन्द्राभिः साचिव्यमिवास्य पूर्वं स्तारागणैर्मध्यमदो विराजन् ज्योत्स्नाविधानेन विदत्य लोकमुत्तिष्ठते नैकसहस्ररश्मिः संगप्रभम क्षीरमुनालवर्णम् उद्गच्छमानं व्यवभासमानं तदर्शचन्द्रं स कविप्रवीरः स्वप्लूयमानं सरसीव हंसम् इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशति सहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे निशाकाम प्रतीक्षा नाम तृतीय सर्गः निशागम प्रतीक्षा नाम तृतीय सर्गः श्री नमः கோபிகா ஜீவனஸ்தன் கோவிந்த இந்த ரெண்டு சர்க்கத்தோடு இப்போ பூர்த்தி பண்ணிப்போம். அடுத்தது மூணாவது சர்க்கத்தில் நான் அடுத்த பகுதியில் தொடரும். ஏன்னா அங்கங்கே ரேடியோவில் அங்கங்கே ஸ்பீக்கரில் நிறைய பாட்டு போட்டிருக்காங்க, நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது, படிக்க முடியல. அது டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கிறதுனால நம்ம அது ஏன்னா நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை நாளாக வர கூழ் ஊற்றுவாங்க, அதனால் இப்போ அம்மன் பாட்டெலாம் நிறைய போடுறாங்க அங்கே ஸ்பீக்கரில். நம்மளுக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது படிக்கிறதுக்கு. அதனால் நம்ம அடுத்த பகுதியில் இந்த மூணாவது சர்க்கத்தில் நம்ம தொடங்கிப்போம். ஜெய் ஜானகி காந்த ஸ்மரணம், ஜெய் ஜெய் ராம ராமா.